शेयर करिएगा मेरी पीपीटी मंजूषा. Thank you for joining this session, and feel free to post your questions, if any, in the chat window throughout the session. To begin with, I take this opportunity to speak a bit about Pune Management Association. PMA is India's premier management association, established in 1977 as an independent trust and public organization. It was founded by all-time great industrialist, late Padma Bhushan S.L. Kirloskar, late Mr. V.S. Vaidya, late Mr. C.S. Kirloskar, late Dr. N.A. Kalyani ji, and late Mr. C.V. Jog. PMA is a center of excellence in the domain of management that empowers the individuals and enterprises to excel in their endeavor. It focuses on providing a wide range of services to improve the standards of management practices in India. Within PMA, this session is organized by Center of Excellence in Career Guidance. There are multiple centers like this, focusing on different aspects. The vision of this center is to provide necessary knowledge, skills, and guidance to all aspiring students and professionals to take initiative and transform lives to make career choices utilizing their values, interests, and abilities. Without any further delay, now I request Manjusha Bhaskarwar ma'am, who is a senior member in this center and a passionate career counselor, to take this session forward. Thank you, everyone. Over to you, ma'am. Please continue. Thanks, Amol. Every countryman needs fearful patriotism to pay homage and respect to those great revolutionaries on the ensuing Independence Day. Happy Independence Day to all of you. Introduction of Geeta Shroff ma'am, well-known name that is synonym of social work in southern part of Gujarat. She is respected not only in social domain of Surat, but by peers and top leaders of the nation. I had visited with her to Mr. Asthana. That time he was in Surat posted. At present, he is Commissioner of Police in Delhi. So we visited in his cabin, and I was there. So I have seen her events. She has done n numbers of projects, events, for students, college, then women, veterans, teachers, and countless. She is very particular with her work and image. How to carry ourselves in such a complicated, yes, we can say she works in a complicated society also, and working with complicated area and keep herself clean and safe. So lot to learn life skills from her. In simple way, I will say just visit her website and name Geeta Shroff. And here now I will hand over to her for her valuable thoughts on career in humanities. Over to Geeta ma'am. हेलो फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंस डे है. आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई है. आई थिंक मंजूषा विल बी हे. वाओ. सो मुझे पीएमए के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच मंजूषा एंड ऑल द टीम. मैंने आज आपका वीडियो भी देखा. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो. आज बात करनी है ह्यूमैनिटीज इन करियर की. तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि वैसे तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, हम भारत की बात करते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जो व्रत, त्योहार, हमारे पर्व जो भी है, उसमें उसके साथ जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, वो कथा कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की ही बात होती है. आप देखना, हमारी जो भी कथा है, चाहे अभी जैसे हम बात करें कि नाग पंचमी की बात करें, नाग पंचमी के बारे में मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी करके आगे ले जाना चाहूंगी कि मेरी परनानी हमें ये स्टोरी हर साल करती थी. जब नाग पंचमी आती थी तो नाग पंचमी की, या वो शीतला सातम, या फिर नौलिया नोम, या जो भी हमारे व्रत त्योहार आते थे, उन सब की बातें वो करा करती थी. तो एक किसान था, जो किसान अपने हल चला रहा था अपना फैमिली के साथ अपने खेत में.
तो जब वो हल चला रहा था तो नीचे से जो नाग था वो और उसके बच्चे सब कट गए। तो एज अ स्टोरी कि वो नागिन को गुस्सा आया और वो बदला लेने के लिए आई और उसने वो किसान और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चों को जाके डस लिया। अभी एक छोटी बच्ची वहां उनकी किसान की वो कोने में दूध पी रही थी। तो वो बच्ची ने ऐसे ही दूध का एक वो कटोरा अपने नागिन को धरा और कहा कि आप ये दूध पीजिए, ऐसा धरा उसको। तो नागिन गुस्से में तो थी लेकिन उसको भूख लगी थी, उसने वो कटोरा दूध पी लिया तो उसके पेट में शांति हो गई। फिर उसको एहसास हुआ कि ये बच्ची मुस्कुरा रही है मेरे सामने, तो उसने कहा कि जो देखो मैंने तो तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन को तो डस लिया है, लेकिन जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी तो बोलना, मैं आ जाऊंगी। वो बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, वो जो घर में गई वहां उसकी जेठानी अमीर परिवार से थी तो उसके लिए तो बहुत कुछ आता था उसके मायके से, लेकिन ये गरीब थी तो उसके घर में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। बेचारी बहुत काम करती थी। तो एक दिन वो ऐसे ही तालाब पे अपने बर्तन लेके साफ करने जा रही थी, भूख लगी थी तो घर में खिचड़ी पकी थी, तो वो खिचड़ी नीचे वो लग गई थी। तो उसने वो निकाला और वो जो पोला जो नीचे होता है ना लास्ट में, वो उसने निकाला और फिर उसने एक पत्थर पे अपने रुमाल पे रख के कि मैं ये बर्तन धोने के बाद खाऊंगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसको भूख भी लगी थी। वहां से वो नागिन और उसके बच्चे आए और उन्होंने वो खिचड़ी खा ली थी। वो जब तालाब में अपने बर्तन धो के वापस आई, उसने ढूंढा कि उसकी खिचड़ी नहीं मिल रही है। तो उसने सोचा कि अब किसी ने खाई होगी तो उसको तो अच्छी ज्यादा और भूख लगी होगी। तो उसने बहुत अच्छी तरह से कहा चलो मेरे से भी ज्यादा जिसको जरूरत थी उसने खाया है, तो जिसके भी पेट में वो खिचड़ी गई उसका पेट में ठंड हो। तो ये जब सुना नाग ने तो उसको वो बच्ची आ गई, उस तुरंत कहा कह रही तो वही बच्चे, वो मनुष्य रूप में आके उसने कहा कि मैं तेरी माँ और ये तेरे भाई है और तू चिंता मत करना, हम तुम्हारी ध्यान रखेंगे। तो ये स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है कि फिर वो अपने ससुराल जाके अपनी सास को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी गोद भराई में मेरे मायके वाले आएंगे ये, और फिर वो भाई लोग सब पूरा गांव देखने आता है क्योंकि इतना सारा जर जवेरात लेके उसके पास आते हैं। इतना अच्छा सा वो पूरा स्टोरी जो मेरी नागपारा नानी सुनाया करती थी, उसमें कितनी ह्यूमैनिटीज की बात है वो सोचिए। कि एक तो पर्यावरण को बचाने की बात है, एक ऐसे जीव को जिसको हमें मारना नहीं चाहिए वो हमें समझाया गया है। फिर हम किसी को प्रेम से कैसे जीत सकते हैं, फिर कर्म का फल हमें बहुत साल बाद भी मिल सकता है, ये बात है। और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई हमारा ले जाता है तो उसको समझना कि उसको शायद मेरे से ज्यादा जरूरत है। तो ये सब ह्यूमैनिटीज की बात तब हुआ करती थी, धीरे धीरे ये बंद हो गई। तो अब बात आई वो कैरिकुलम में, तो अब सारे कोर्स बने हैं ह्यूमैनिटीज के कि चलो भाई लोगों को सिखाओ ह्यूमैनिटीज के लिए इतनी सारी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को वो जरूरत है ना। तो अब मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ कि जब हमारी संस्कृति की बात है तो वहां हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम यानी ब्रदरहुड, पूरे वर्ल्ड में जो भी है वो सब हमारे है। हम सिर्फ छोटी सी बात नहीं करते हैं हमारे फैमिली की या हमारी कंट्री की, हम कहते हैं कि पृथ्वी पे जो भी है वो सब हमारे ही है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं ब्रह्मा हूं तो मेरे अंदर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जो है वो सब मेरे में और मैं ब्रह्मांड में। ये कंसेप्ट अब वो कैरिकुलम में सब बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो आज मैं ये बात आपको करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी 10th या 12th स्टैंडर्ड में है या ग्रेजुएशन करने के बाद वो सोच रहे हैं कि क्या करें, तो उनके लिए इसमें बहुत अच्छी करियर है। और ये किसके लिए है, ये क्वालिटी आप लोगों में, आपको ये क्यों मीटर आता है कि हमें ये करना चाहिए, जिसके अंदर एक दूसरों के लिए कुछ करने की एक सोच है, जिनको लगता है कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है। और मैंने देखा है कि अब के यूथ में ये बहुत है, और इसलिए मैं मेरे 25 साल के सोशल वर्क एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, और क्योंकि अब बहुत सारे कोर्स में कंपलसरी हो गया है कि कोई भी एनजीओ के साथ 1 या 2 महीने का आप एक्सपीरियंस लो और उसका सर्टिफिकेट लो,
और ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं, उसकी बहुत वैल्यू है कि उसका आपके अंदर मार्क्स भी काउंट होते हैं, ग्रेड उसमें वो लोग गिनते हैं। और हमारी संस्था में स्पेशली हम जो भी इंटर्न्स आते हैं उनको बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस दिलाते हैं, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग भी देते हैं, फैमिली कोर्ट में भी देते हैं, और सब अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी देते हैं। और कुटुंब कल्याण मित्र ऐसा सेंटर है जहाँ पूरे परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आता है, और वी आर द लिसनर। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको इतना अच्छी तरह से लोगों को समझने को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने को मिलता है कि वो इंटर्न्स खुद कहते हैं कि हमें ऐसी लाइन सिलेक्ट करनी है जिससे हम सोशल वर्क में आगे बढ़े। सो नॉट ओनली सोशल वर्क, अभी मैं आगे आपसे बात करती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये तो एक सोशल वर्क की, लेकिन बहुत कुछ है आपकी करियर के लिए। सो जिसमें एक मदरली होता है। हमारे पूरे काउंसलर की क्वालिफिकेशन क्या है, सब में एक माँ जो अनकंडीशनल लव देती है, जिसको कोई भी शर्त के बगैर वो सबकी केयर भी लेती है और प्रेम भी करती है। बस बिल्कुल यही लोग होते हैं जो ऐसी ह्यूमैनिटीज वाली पसंद करके आगे बढ़े। ये क्वालिटी जिसमें है वो तो एकदम फुल फ्लैश में क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं इसमें। सो अब मैं बात करूंगी आपको स्टडी की, कि आप 9th एंड 12th आप क्या क्या कर सकते हैं। आप लॉ करने के बाद भी ये कर सकते हैं, आप मास्टर्स ले लेते हो उसके बाद भी, और सबसे बड़ी बात मैं आगे भी बताऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि आप 10th और 12th इसके बाद आप लाइन ले सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स भी लाइन आप जाओ। आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जा सकते हो, सोशल साइंस में, फाइन आर्ट्स में, मास मीडिया, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, एनिमेशन, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक सर्विसेज, यूपीएससी सबसे ज्यादा आपको वहां मिलेगा, क्योंकि आईएएस, आईपीएस, आईएएस ये सब वहां होंगे। वो इतनी अच्छी तरह से पब्लिक सर्विस दे सकते हैं। फिर आप अगर सोशल वर्क करना चाहते हो, बैचलर डिग्री एसडब्ल्यू, देन एमएड, आप भी बन तो आपको बी और एमएड भी कर सकते हो। आप बीए एमए सिंपल ह्यूमैनिटीज वो सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सब आप इसमें कर सकते हो। आफ्टर 10th और 12th या ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, मास्टर डिग्री लेने के बाद भी। अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा मेरी, यस, अगर आप अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हो तो भी बहुत यहाँ 22 स्कोप है आपके लिए। क्योंकि मैं छोटी सी बात बताऊं कि अभी 2 साल पहले से प्रायोरिटी बेस के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज पीआर देती है कि ये स्ट्रीम में अगर आपने स्टडी की है तो हमारी कंट्री में आप आओगे तो ये पीआर के पॉइंट्स, और हम लोग पीआर आपको ऐसे ही दे देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल पहले सोशल वर्क का वो लोग बहुत अच्छी तरह से वो वेलकम कर रहे थे, तो उनको पीआर सामने से दे रहे थे। तो ऐसे आपको बहुत सारी कंट्री है जहाँ वो सोशल वर्क में ही बहुत अच्छी तरह से वहाँ मास्टर डिग्री लेने के लिए भी इनवाइट करते हैं और वहाँ जॉब भी ऑफर करते हैं। तो आपको अगर अब्रॉड जाने के लिए कुछ प्लान करना हो तो वहां के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है। यहाँ की जो जितनी भी आपने डिग्री है उसके बाद आगे वहां मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको अच्छी सी जॉब वहां मिल सकती है। फिर मैं एक और बात करना चाहूंगी मेरी नेक्स्ट स्लाइड से। यस,
एक मैं अच्छी बात बताऊं, मैं अभी जब ऑस्ट्रेलिया गई 1-1.5 साल में रही अभी वहां, क्योंकि कोविड के कारण मैं वहां स्टक हो गई थी। तो वहां सबसे अच्छा ये मुझे लगी कि मैंने बहुत कुछ विजिट किया वहां, और बहुत सारी जगह पे मैं देख रही थी। तो मेरी 6 साल की ग्रैंड डॉटर मेरे साथ आ रही थी सब जगह। तो वो मुझे कहती थी कि दादी मैं बड़ी होके बहुत कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे बहुत कुछ बनना है। तो मैंने कहा क्या क्या? तो उसने कहा मैं नर्स बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पुलिस ऑफिसर भी बनूंगी, और मैं लॉयर भी बनूंगी। मैंने कहा वाह गुड दादी, ये सब मैं बन सकती हूँ, पता है मेरे पापा भी मुझे बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल तू बन सकती है। तो जब मैं ये सोच रही थी कि एक बच्चा भी ये सोचता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो मैंने उसको ये कहा कि तुम नर्स और डॉक्टर ये दोनों चीज साथ क्यों बोल रही है? तो तू डॉक्टर बनेगी तो इट्स ओके फाइन गुड, तुझे पेशेंट के साथ ही काम करना है। तो बोले नहीं दादी, मैं डॉक्टर तो बनूंगी डिग्री लेने के लिए, क्योंकि लोग मुझे डॉक्टर बोलेंगे, पर मुझे काम करना है नर्स वाला। मैंने कहा यानी? तो बोले कि वो कितना अच्छी तरह से ना सब पेशेंट को देखती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बनना तो नर्स है, पर मैं डिग्री लूंगी डॉक्टर की। तो सी एक 6 साल की बच्ची को अंदर से जो हो रहा है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे साथ जो शेयर करते थे, जो हम लोग काउंसलिंग में मेरे साथ इंटर्नशिप में आते हैं, वो सब बच्चों के साथ जब शेयरिंग होती है, तो मैंने उनके अंदर करना है, सोसाइटी के लिए करना है। सो इसीलिए मुझे जब ये सब्जेक्ट आपके यहाँ से ऑफर हुआ, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि वाह ये इतनी अच्छी करियर इसमें आप बना सकते हैं। आप जॉब की बात तो छोड़ो, आप खुद अपना बिजनेस भी बहुत बढ़िया है इसमें कर सकते हो, वो भी हम आगे बात कर रहे हैं। और ये मैं अभी बात कर रही थी कि आप एक साथ इतने सारी डिग्रियां भी ले सकते हैं, और दूसरा कि आप ये करते करते अपने खुद में आप इतना अच्छा चेंजेस महसूस करेंगे कि आप पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ गेन करेंगे। जैसे आप जब ये काम करते हैं, जैसे मैं 25 साल से ये फील्ड में हूँ, एक्चुअली तो 30 इयर्स से मेरी टीम है, उसमें भी सब जो जुड़े हुए हैं, उसमें रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर से लेके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी में जो हमारे जॉब से या हमारे बिजनेस से हमने अचीव नहीं किया या खुशी नहीं मिली, वो हम यहाँ हमें मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक साइंटिफिक बात है ना, क्योंकि हम जब कुछ किसी को देते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। वो आनंद जब हम देते हैं तभी पता चलता है। और शायद इसीलिए इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटर्नशिप में जुड़ते हैं, उसके बाद हमारे साथ जुड़ के सोशल वर्क में काम करते रहते हैं अपने सी के साथ साथ, चाहे वो चेन्नई से आए हुए हो या कोई और शहर या स्टेट से आए हुए हो। वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हमारी सर्विसेज के वो लोग जहाँ भी है वहाँ वो टाइप के सर्विस देना भी शुरू कर देते हैं। सो ये एक अंदर की बात है कि आप कुछ करते जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा। कैसा? जैसे एक तो आप एम्पैथेटिक बनेंगे, जब किसी को सुनते हो तब आप जब इन्वॉल्व होते हो तब आप में कितनी सारी क्वालिटीज आती है। आपके अंदर बहुत सारा वो है ना इंटरनल चेंजेस, जो आप कितने सारे कोर्स कर लो नहीं महसूस कर सकोगे, वो चेंजेस आप से अपने आप में पाओगे। जैसे ये मैंने जो कहा कि एक तो सबसे पहले आप इतने लविंग और केयरिंग पर्सन पाओगे, सबके लिए सोचना, सबको समझने की अपने अंदर एक चाहत होगी। आपको दूसरों के प्रॉब्लम के साथ खुद कंसर्न भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम में है तो लाओ मैं क्या करूं, उससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। फिर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, वो आपको पता है, तो आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि अरे वाह ये सॉल्यूशन तो हम ढूंढ के या करके ही रहेंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वालों में से बनेंगे, क्योंकि जब ये लाइन आप करियर के तौर पे चुनते हैं, जब पढ़ाई के साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप में ये सब क्वालिटीज दिखाई देगी कि आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एकदम से रेडी हो जाओगे।
आपकी सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी कोरोना के दौरान क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी एनजीओज है जिन्होंने सेवा देने के लिए वो बाहर निकली हुई थी सेकंड वेव में। तो उसमें अपने आरएसएस भी थे और दूसरी भी हमारी तो बहुत एनजीओ, महिला एनजीओ थी। तो सबसे बड़ी बात बताऊं तो उसमें 1% के अलावा 19% को कोविड टच नहीं किया। जब वो कोविड पेशेंट के लिए बाहर निकले, सेवा की, लेकिन ये 99% को कोविड नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है, क्यों? तो ये सब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप में इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग बनता है जब आप किसी को कुछ देते हो, कोई मदद करते हो, कोई ऐसा काम करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग बनती है। तो ये हमारे आपको आपसे इम्यूनिटी भी एकदम जाती है। तो हमारी नेचुरली बॉडी हेल्दी रहेगी, तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, और माइंड हेल्दी रहेगा तो हमें कहाँ लीड करेगा? प्रॉस्पेरिटी की तरफ। सो ये करियर जब आप चुनते हो तो आपके खुद के अंदर कितना देखो चेंजेस आता है। आप इतना हम्बल हो जाते हो क्योंकि आप को प्रॉब्लम समझते हो ना। वो एक छोटी सी बात, में बहुत छोटी थी तब मैं सब सुनती थी, तो मुझे सुनने बड़ी होके सुनती ही। तो अभी एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगी कि ट्रेन में एक अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे, तो बच्चे बहुत धमाल कर रहे थे, तो बाजू में बैठे हुए लोगों को इरिटेशन हो रहा था। उन्होंने फिर वो फादर को कहा कि आपके बच्चे इतनी तकलीफ दे रहे हैं सबको, आप टोकते क्यों नहीं हो, उनको रोको। तो फादर ने कहा कि एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे बच्चों ने अपनी माँ को गंवाया है। सो शी इज नो मोर। तो बच्चे डिस्टर्ब है, तो वो अपनी डिस्टर्बेंस के कारण वो ये कर रहे हैं। तो पूरे जो ट्रेन में बैठे थे वो लोग इतने सिंपैथेटिक हो गए, वो सब बच्चों को कुछ देने की कोशिश करने लगे। फिर उनको वो उनकी तकलीफ नहीं दिखी कि वो बच्चों की आवाज से हमें तकलीफ हो रही है, ये उनको नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको समझा। तो जब आप ये करियर चूज करते हो, उसमें आप भी ऐसे ही लोगों को समझने की तरफ जाओगे, और उससे आपके अंदर की एबिलिटी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। फिर आप एक डिसिप्लिन सिटीजन बन जाओगे, कि क्योंकि आपको पता है कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है, आप कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हो, तो आप इतनी अच्छी तरह से डिसिप्लिन में आ जाओगे। ये सब आपके अंदर जो अच्छे से चेंजेस लाएगा, उससे आपको और आगे एक नहीं, एक के साथ 2, 3, 4, 5 स्किल्स आप डेवलप करते होंगे। जैसे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनोगे, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा एज ए लिसनर, और आप जो भी कहेंगे थोड़े से शब्द में इतना कुछ कहेंगे, और आप सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हो, एक्सपर्ट। एंड एक दूसरी बात, आप लोगों को तो जानने लगोगे, लेकिन आप कल्चर और हिस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी आपको दिखेगी। आपका थिंकिंग, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, ये सब बढ़ते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, लैंग्वेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इतनी सारी, क्योंकि है ना, प्यार की भाषा, और किसी को आप जब तकलीफ में होते हैं तो उसको कोई शब्द की जरूरत नहीं होती है, उसकी आंख देखकर आपको पता चल जाता है। चार्ली चैपलिन को आपने देखा होगा, है ना? चार्ली चैपलिन इतना कुछ भी, एक भी शब्द बोले बिना कितना कुछ पूरी स्टोरी कह देते हैं। बस बिल्कुल वही बात, मैं जब स्विट्जरलैंड गई थी, मेरी वहाँ वो लोग का एक्सेंट, और मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ के एक्सेंट से थे कि मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जब मैंने बातें ऐसे ही शुरू की, तो कि थोड़े समय में तो मुझे आधे घंटे में तो पता भी नहीं चला कि वो कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो और मैं कैसी लैंग्वेज में जवाब दे रही हूँ, लेकिन हमारा फुल कम्युनिकेशन। 2 घंटे बाद जब मुझे पता चला कि मैं 2 घंटे से उन लोगों से बात कर रही हूँ, फिर ऐसे ही हंस के हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप कैसे मेरी बात समझ सकते हो?
उन्होंने बहुत अच्छा मुझे समझाया कि आपकी हार्ट की लैंग्वेज, बोले कि आप जो भी बोलती है वो हार्ट से बोलती है, तो हम समझ जाते हैं कि आप क्या बोलती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी एक सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ बनेगी वो ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से सब लैंग्वेज समझने लगोगे और खुद से आप बहुत सारी लैंग्वेज सीखने भी लगोगे, फॉरेन लैंग्वेजेस, ये इंग्लिश तो यस ऑफ कोर्स। और ये सब जगह पे आपकी जॉब इतनी अच्छी ऑफर होती है यहाँ और हाई स्केल पे, तो ये सब भी आपको ये करियर चूज करने से मिलता है। और मैं जब लाइफ लैंग्वेज की बात करती हूँ वो तो बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद भी अभी एक लाइफ लैंग्वेज पे बहुत सालों से एक बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है थोड़े समय में बाहर भी आ जाए। बस उसमें मैं वही समझा रही हूँ कि लाइफ लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। देखो ये सब, ये करियर आप जब चूज करोगे तो आपको नई नई फील्ड, नई नई क्रिएटिविटी समझ में आएगी। अब आपके सामने जो स्लाइड है सेकंड इनिंग की, यस, सेकंड इनिंग में भी आप ये करियर पसंद कर सकते हो। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और ये उम्र में भी मैं सीखती रहती हूँ हमेशा। मैं कहीं ना कहीं मेरा काम कहीं एनरोल कराती रहती हूँ, कोई कोर्स हो, कोई शॉर्ट टर्म हो, कोई लॉन्ग टर्म हो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहां भी मैंने कहा कि मुझे कुछ सीखना है, आपके यहाँ के कोई कोर्स ऐसे हो जो मैं सीखूं। मेरी शादी के 20 साल बाद, 20 साल बाद आफ्टर माय मैरिज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मुझे आदत है कि कोई भी उम्र में हम पढ़ सकते हैं और जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो बच्चे आप लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको आपकी फैमिली मेंबर्स जो घर में हैं उन्हें पढ़ाने की मजा आएगी। जैसे मेरा बेटा जब कॉलेज में गया तब उसने कहा कि माँ तू क्या चिंता करती, तू भी एडमिशन ले ले, तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। तो मैं और मेरे बेटे ने दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। तो आपके घर में भी ऐसे होंगे जो सेकंड इनिंग प्ले करने के लिए रेडी होंगे, उनको भी साथ में ये अच्छी लाइन आप सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने कहा कि वैसे आप बाहर की कंट्री में स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को भी वो लोग एज अ वॉलंटियर और वो बहुत सारे सोशल वर्क में ज्वाइन करते हैं और अच्छे स्केल पे, बहुत अच्छा स्केल भी देते हैं और उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वो सोशल वर्कर्स को देते हैं और हाई पे भी देते हैं। तो वहाँ जो सीनियर सिटीजन जाते हैं वो अगर एनरोल कराते हैं अपना नाम के हम लोग सोशल वर्क के लिए रेडी है, तो वो उनकी हॉस्पिटल, जहाँ लाइब्रेरी, जहाँ जरूरत हो। हेलो, Yes, madam, we can. सॉरी, बीच में लाइन चली गई थी। सो सेकंड इनिंग के लिए भी जिनको इसमें इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल वो कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ढेर सारे कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म थोड़े से 2-3 साल के भी ऐसे कोर्स है जो वो कर सकते हैं। अब करियर की बात आई तो मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत अच्छा करियर इसमें आप बना सकते हो, बहुत सारी जॉब भी आपको मिल सकती है बिकॉज यू नो ह्यूमैनिटी इज एन ओशन। आप अपनी करियर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के इसमें कि ऐसा आप इतने 25 साल से जो वर्क कर रही हूँ उसमें मैं बहुत सारे अधिकारियों को मिलती हूँ, तो ये सब वही पढ़ के आए हुए हैं जो आईएएस ऑफिसर है, हमारे आईपीएस ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट की इतनी सारी जॉब है आप लोगों को जो मिल सकती है। आप रिसर्चर बन सकते हो। मैं बहुत रिसर्चर्स के साथ काम करती हूँ। जैसे मैंने, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने एक सोशल वर्क के एनजीओ से एक डॉक्यूमेंट फिल्म बनाई थी, बेटी आपकी हमारी और मासूमियत अपने हाथ में। ये 2 फिल्म बनाई थी जो 10 साल से छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होता था और वो उसकी हालत जो होती थी उसके ऊपर ये फिल्म है। 4 बच्चियों की रियल स्टोरी मैंने रखी है उसमें। तो तब मैंने ये स्टोरी करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बाद हमने रिसर्च टीम बनाई। तो मैं इतने सारे रिसर्चर्स से मिली तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल यही लाइन उन्होंने सिलेक्ट की है अपनी लाइफ में। तो आप जो चाहेंगे वो आप अच्छे से अच्छा रिसर्चर भी बन सकते हैं, चैरिटी ऑफिसर बन सकते हैं,
आपकी राइटिंग में बना सकते हैं, टीचिंग लाइन में तो यस ऑफ कोर्स प्रोफेसर बनो, आप लेक्चरर बनो, टीचर बनो, एंड ऑल्सो एडवर्टाइजिंग कंपनी में आपकी बहुत जरूरत रहती है, मार्केटिंग में और पॉलिटिक्स में तो ग्रेट, वो राष्ट्र के लिए आप कितना कुछ कर सकोगे। और यस ऑफ कोर्स आपको खुद को भी अगर पैसे के तौर से भी हम देखें तो एक अच्छा सा वहां भी आपको एक मिल सकता है। फिर इंटरप्रेटर आप बन सकते हैं, ड्रामा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ये सब करियर भी आप बना सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरेक्टिव ड्रामा करने वालों से मैं मिली जिन्होंने ऐसे छोटे कोर्स करके आज वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतनी क्रिएटिविटी के साथ कि उनके पास लोग सीखने के लिए आते हैं। सो आपकी क्रिएटिविटी उससे बहुत बढ़ेगी। आप अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हो क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज इसमें वर्क करती है। और सबसे बड़ी बात, आप पीएचडी कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो नॉलेज बढ़ता जाएगा आप उसके अंदर आप पीएचडी भी कर सकोगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जॉब ऑफर्स होते रहते हैं, गवर्नमेंट की भी होते हैं, प्राइवेट कंपनी में। और सबसे बड़ी बात तो एनजीओ आप खुद अपना बना सकते हो, खुद अपना एक एनजीओ करके आप एक सोशल वर्क में आगे बढ़ सकते हो। मेरे इंटर्न्स जो मेरी ही संस्था में 1-2 महीने के लिए सीखने के लिए आए थे, आज उन्होंने में से कितनों ने अपना खुद का एनजीओ बना दिया और बहुत अच्छी तरह से वो ग्रांट का और का उपयोग करके सोसाइटी के लिए नए नए अच्छे जो आज जरूरी है ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। सो इसमें जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उनके लिए भी कितने अच्छे जॉब है, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के ले आते हैं। मैं को सैल्यूट करती हूँ, रियली वेरी नाइस। सो ये इतनी सारी आपकी चॉइस है। अभी सीएसआर के लिए मैं थोड़ा बात ये कर लूंगी कि सीएसआर फंड, सीएसआर जो अपनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनको कंपलसरी वो देना पड़ता है और इसके लिए उनको भी अपॉइंट करने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति जो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए, जो अच्छी तरह से वो सब मैनेज करे। तो यहाँ भी आपको जॉब भी मिल सकती है बहुत बढ़िया सी। तो सीएसआर के लिए मैं वो कमिटी में रही थी तो मुझे पता है यहाँ भी यूथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको यस मैंने आगे कहा वैसे कि अब्रॉड में तो चांस है ही, वहाँ कोई भी आप ये कोर्स करके जाओ वहाँ बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं। और लास्ट में मुझे तो लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया, अब आपकी तरफ से मुझे कुछ सुनना चाहिए। सो मुझे किसी को क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनाई थी और दिखाई थी उसका है। अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है और बड़े बड़े लोगों से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। इतनी छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम उनकी सुन लेते हैं तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। वो मैंने मेरी ये 25 साल की लाइफ में खुद पे भी देखा और बहुत सारे मेरे साथ जो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वो सबके अंदर लाइफ में मैंने ये देखा। यस, मैं वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे प्राउड है अपने देश के जवानों के ऊपर। हमारे आज 15 अगस्त भी है, मैं वो सबको सैल्यूट करती हूँ, ये एक्स सर्विसमैन हो या अभी जो सर्विस में है सबको। और ये मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करती रहती हूँ। एनजीओ करने से ये सब होता है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत सरहद पे भी जा सकते हो, देख सकते हो, मिल सकते हो, दूसरे कंट्री के साथ कैसे हमें मेल जोल होता है, सरहद के ऊपर हाथ भी मिलाते हैं, खाना भी खाते हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत कुछ सीखना और देखना मिलता है। यस, सो आई थिंक ये आप एग्री होंगे ये सब बात से। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होगी इसमें जो मुझे सुन रहे हैं उसमें कोई भी ये करियर के तौर पे पसंद करेगा, क्योंकि बहुत जरूरत है पूरे वर्ल्ड को ह्यूमैनिटीज की बहुत जरूरत है। और आप कहीं भी जाओगे आपको वहाँ अपनी एक अलग सी जगह खुद बना सकोगे।
Thank you. Best luck. Yes, Girish is there and he will just communicate with you questions. थैंक यू वेरी मच गीता मैम फॉर द वंडरफुल सेशन. आपने बहुत सारी चीजें बहुत कम शब्दों में बताई है. एंड first of all, want to say thank you personally. The way you start the story, which we shared by our grandmothers and grandfathers, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी कि हम किसी ऐसी चीज की शुरुआत करने जा रहे जो हर किसी की लाइफ को चेंज करता है. एंड दैट इज ऑल्सो with something which we received from our ancestors, our Sanskriti and our history. So thank you very much for that wonderful story. और जो मैसेज आपने दिया है that is very very clear. There are a lot of questions to ask, but as per the time permits, मैं आपसे सिर्फ बहुत कम सवाल पूछूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने कहा कि ये हर कोई कर सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि देर इज नो bound for that. Students, professionals, second inning players, everyone can do humanities. So like in India, more than 56% population is the youngsters. तो जो स्टूडेंट्स भी नहीं है और सेकेंड इनिंग में भी नहीं है, पर जो काम भी करते हैं वो अपने काम को कंटिन्यू करते हुए इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? लाइक व्हाट वी कैन डू व्हाइल कंटिन्यूइंग आवर जॉब. यस, मैं जवाब दूं गिरीश जी? यस मैम, प्लीज गो अहेड. थैंक यू. पहले तो मुझे अच्छा लगा, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी. वैसे स्टोरी तो कहने के लिए कही थी, लेकिन यस ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ उससे बहुत कुछ सीखना होता है. हाँ, और आप आंसर भी देती हूँ कि आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्स है, और स्पेसिफिकली अभी कोरोना के बाद तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने वैसे भी ऑनलाइन कोर्स बहुत नए नए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. और हमारे खुद के सेकंड इनिंग वाले भी, और मेरे यूथ जो मेरे साथ इंटर्न के तौर पे जुड़े हुए स्टूडेंट्स, जिन्होंने कहा कि मैडम हमने लाइन हमारी सिलेक्ट फैमिली के कारण ये कर ली है, वो कर ली है, पर हमें ये करना है, तो वो सब भी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स करते रहते हैं, 6 महीने के, 1 साल के. और वो इतनी जल्दी, मैंने कहा ना, एक साथ आप बहुत सारे कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है. सर्टिफिकेट तो बाजू पर, आपके अंदर जो ग्रोथ होगा उससे आपको और आगे बढ़ने के लिए अंदर से ही इच्छा होगी. तो मैंने देखा कि वैसे बहुत सारे हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं. हमारे सूरत में तो औरो यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, वहां तो ऑनलाइन भी है, और वहां जाके भी आप कोई भी कोर्स ऐसे कर सकते हो ह्यूमैनिटीज के. मैम, आप ऐसे कुछ कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या किसी और फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं? आई थिंक कि वो ये सब मेरे से ज्यादा आगे है, तो वो ऑनलाइन ये सब देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स उनके लिए बेटर है. मैंने आपको इसीलिए ये बच्चों के लिए मैंने इतना सारा निकाला कि आप हिस्टोरियन भी बन सकते हैं, ये ह्यूमैनिटीज के उसमें आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल, ये सब के लिए ऑनलाइन कोर्स है. काउंसलर एक अच्छे से बन सकते हैं, आप साइकोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट लेके एक अच्छे से बढ़िया, मेरे पास मैक्सिमम काउंसलर्स है, उसकी पोस्ट रहते हैं हर जगह पे, वी वांट द साइकोलॉजिस्ट. तो ये सब कोर्स वो कर सकते हैं. जो आईटी वाले हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं. बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स यहाँ जरूरी होते हैं, तो आप अपना मैनेजमेंट का कोर्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं. हाँ, मैं एक क्षेत्र भी भूल गई थी गिरीश जी, जर्नलिज्म, ये भी एक बहुत बढ़िया लाइन है, और वो भी आप साथ में कर सकते हो. जर्नलिज्म के कोर्स बहुत होते हैं, शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स के, 1 साल के, वो भी अपने पढ़ाई के साथ साथ ये लोग कर सकते हैं. थैंक यू फॉर दैट मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम सब लोग जो है जो पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, आपने कहा कि सोशल सर्विस करने के बाद में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. आई नो कि ये आपके डेवलपमेंट में बहुत काम आती है. लाइक यू गेट द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस व्हिच टचेस योर हार्ट्स. कुछ कहीं पे आपको कुछ सीखने को मिलता है, बट द वन थिंग इज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जाके ढूंढे किसी को और किसी के साथ में काम करें. तो ये जो सर्टिफिकेशंस हम करेंगे, सिर्फ सर्टिफिकेशंस करके हमें वैसा एक्सपीरियंस तो आएगा नहीं. तो अगर हमें किसी के साथ काम करना होगा तो
हमें किस तरीके से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें जेन्युइन एक्सपीरियंस मिलेगा और यहाँ पे हमें जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ, वो एनजीओ की बात आ गई गिरीश जी। यस ऑफ कोर्स आपको वैसे तो पता चल ही जाता है कि कौन सी एनजीओ है वो जेन्युइन है। जो वर्क करा के, जैसे हमारी एनजीओ में हम लोग जितने दिन वो लोग हमारे साथ काम करते हैं उतने दिन 28 डेज तो हम लिख के देते हैं कि 28 डेज। हेलो, मेरा आवाज आ रही है? यस मैम, प्लीज गो हेलो, अहेड। सॉरी। हाँ, तो हम ये और क्या क्या एक्सपीरियंस किया कि पुलिस स्टेशन में, फिर फैमिली कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्लम एरियाज में, ये जितने भी ऐड कर उसने लिया होता है वो सब ऐड करके हम सर्टिफिकेट देते हैं। अभी आपने कहा हमें कैसे पता चले, आपको इस तरह से पता चला है कि जैसे जो भी वो लोग काम करते हैं, जो भी एनजीओ, वो एनजीओ का वो एरिया में तो पता होता ही है सब लोगों को, लेकिन उनका जो भी काम किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने पास्ट में ये काम किया है। तो उसके हिसाब से आपकी चॉइस, आपको ये काम में पसंदगी है तो आप वो एनजीओ में जाके इंटर्नशिप करके उनके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बहुत सारी अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंटर्नशिप सोशल वर्क या CSR में आपको एक्सप्लोजर दे के सर्टिफिकेट देती है अभी तो। Okay, thank you, ma'am. So, next question is like, it is not that much clear, but the only thing is, like everyone wants to help, and they also want to make everyone feels the same way we are in this society, जहाँ पे भेदभाव ना रहे। पर ये सब कुछ करते समय हर कोई ये चाहता है कि उनकी लाइफ कंटिन्यूएशन में चलती रहे, जिसके लिए एक मॉनेटरी अमाउंट मिलना बहुत जरूरी होता है। दिस इज समथिंग विच स्टॉप्स एवरीवन, नॉट एवरीवन से, मैक्सिमम पीपल्स टू कम इन दिस फील्ड। सो अगर आप ये बता सको कि जैसा आपने बताया कि आप अब्रॉड में करियर कर सकते हो या आपको गवर्नमेंट जॉब्स लग सकती है, तो इसमें जो पे स्केल होता है वो किस रेंज में आता है? बहुत हाई रेंज में आता है गिरीश जी, बहुत हाई रेंज में आता है। और अब्रॉड में तो यस ऑफ कोर्स मैंने देखा कि वो बहुत हाई रेंज में, और रिस्पेक्ट भी इतनी हाई रेंज पे। और अपने यहाँ भी ये जो डेवलपमेंट जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उसमें भी ये लोग को क्लास 1 क्लास 2 की ग्रेड ये, और उनका हाई है, पता ही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। कैन यू जस्ट रिपीट इट वंस अगेन? सुनाई दे रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है। हेलो, यस मैम। इश्यू है। हाँ, मैं कहती हूँ कि अब्रॉड में तो बहुत सारे हाई स्किल, मैंने इससे पहले कह दिया कि हाई स्किल और हाई रिस्पेक्ट जॉब वहाँ ऑफर होती है सोशल वर्क में, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए स्पेशली। और अपने इंडिया में भी बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब भी क्लास 1 और क्लास 2 इससे आप ऑफर होती है। यानी क्लास 1 और क्लास 2 की आप वो देख लीजिए कि कितना होता है उनकी सैलरी का शुरुआत।